Hello students, my name is Hira Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter number 3, the skeletal system is going on, right? We have completed our all 4 sessions of this chapter, right? Today is 5th session. In 5th session, I am going to explain you about joints. उसमें कौन से joints होते हैं? Movable joints और immovable joints, right? But before I start explaining this, I just want to revise you all the topics of this chapter: the skeletal system, the skull, the rib cage, the backbone, limbs or girdles, right kids? And vocabulary words or meanings. So फटाफट से देख लेते हैं. Skeletal, muscles, rib cage, vertebrae, wrist, ligament, cartilage, tendons, voluntary, socket, grinding, hinge, pivot, invertebrate, skull, girdle, pelvic, kidney, heart and internal. Now meanings. Skeletal मतलब all the bones that support the body. Number 2, adult, a person that is fully grown. Number 3, injured, people who have been hurt. Number 4, attach मतलब join something to something. Number 5, ankle, the part of your body where your foot joins your leg. Number 6, contracts, to become or to make something smaller or shorter. Number 6, hold, to keep something in a certain position. Now the skeletal system. The skeletal system consists of bones and forms the framework of the body. It gives shape to the body and protects all the internal organs of the body. For example, heart, lungs and kidneys from getting injured. The skeletal system along with the muscular system helps the body to cover. There are 206 bones in an adult's body. कितने bones होते हैं? 206 bones होते हैं skeletal system में. Skeletal system में क्या क्या cover होता है? Skull, upper limb, lower limb, breastbone, rib cage, backbone and thigh bone. मैंने आपके साथ सेशन 1 में इमेज शेयर की थी, राइट? फिर आता है स्कल. तो स्कल का क्या काम है? एक तो वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं. देयर आर 22 बोन्स इन द स्कल. मतलब कितने बोन्स होते हैं? 22. बाकी सब के सब बोन्स जो होते हैं ना, वो स्कल के साथ कनेक्टेड रहता है एक्सेप्ट वन बोन. ये जो लोअर जो वाला होता है ना, वो कनेक्टेड रहता नहीं है क्योंकि वो मूवेबल है, वो इमूवेबल नहीं है. इमूवेबल मतलब फिक्स रहते हैं और मूवेबल मतलब जो हिल पाते हैं. तो ये मूवेबल है, तो ये फिक्स स्कल के साथ रहता नहीं है. नाउ रिब केज. Rib are the thin curved bones that are arranged to form cage-like structure called the rib cage. मतलब rib cage है, वो cage जैसा structure को form करके हम क्या बोलेंगे? Rib cage. There are 12 pairs of bones. Rib cage में कितनी pairs होती है? 12 pairs होती है. The last 2 pairs होती है ना, what we are going to call it? Yes, उसको last 2 pairs को हम क्या बोलेंगे? Floating, right? Floating ribs. So they are not attached to the sternum. The rib cage protects the heart and lungs. Rib cage का क्या काम है? हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना. फिर आता है बैकबोन. The backbone or spine is made up of 33 small bones called the vertebrae. मतलब जो बैकबोन होते हैं उसमें 33 अलग अलग वर्टिब्रे, छोटे छोटे बोन्स होते हैं. हम उसको क्या बोलेंगे? वर्टिब्रे. क्या बोलेंगे? वर्टिब्रे. वो 33 एक साथ इकट्ठा होके फॉर्म होते हैं, तब क्या बनता है? वर्टिब्रल कॉलम. क्या बनता है? वर्टिब्रल कॉलम. द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कोड दैट रन्स थ्रू इट. बैकबोन का क्या काम है? तो के स्पाइन को प्रोटेक्ट करना, जो बहुत स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना, वो बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है, तो वो क्या प्रोटेक्ट करता है? स्पाइनल कोड को. नाउ लिम्स. लिम्स क्या होती है? अपर लिम्स और लोअर लिम्स. अपर लिम्स का क्या काम है? कोई भी चीज़ को होल्ड करके रखना, राइट?
लोअर लिम्ब का क्या काम है, तो कि वो हमें वॉक करने में, स्टैंड करने में और सिट मतलब बैठने में हमारी हेल्प करता है। तो दीज आर द वर्क्स ऑफ लिम्स ऑफ अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। नाउ इन लास्ट सेशन, सेशन 4 में हमने क्या किया, गिल्ड्स किया। क्या किया, गिल्ड्स। देयर आर 2 गिल्ड्स इन ह्यूमन बींग्स, द शोल्डर गिल्डल जिसको हम पेक्टोरल गिल्डल भी बोलेंगे, और हिप गिल्डल जिसको हम पेल्विक गिल्डल भी बोलेंगे। यहाँ पे दीदी ने बोर्ड पे लिखा था, राइट। द शोल्डर गिल्डल कनेक्ट्स द 4 लिम्स, ये जो पीछे का शोल्डर गिल्डल होता है वो किसके साथ कनेक्टेड रहता है, हमारे 4 लिम्स के साथ। एंड द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स एंड कॉलर बोन्स, मतलब शोल्डर ब्लेड होती है ना, उसके ऊपर कॉलर बोन्स होते हैं पतले पतले, तो वो भी 2 पेयर्स में होते हैं। और ये जो शोल्डर गिल्डर होते हैं ना, वो भी 2 पेयर्स में होते हैं। बाकी रहा हिप गिल्डल, तो द हिप गिल्डल कनेक्ट्स द स्पाइन विद द हिंड लिम्स, हिप गिल्डल होता है वो स्पाइन से कनेक्टेड रहता है। ओके, हियर वी कंप्लीटेड आवर गिल्डल्स। फिर लास्ट में क्या किया था हमने, फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। हमने कौन कौन से फंक्शंस किए थे स्केलेटल सिस्टम में, एक तो वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और बॉडी को शेप भी देता है, राइट। फिर दूसरा था कि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स में जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स। फिर था कि वो हमारे डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट में भी हमारी हेल्प करता है, दीदी ने मूवमेंट करके भी दिखाया था। और लास्ट वाला क्या था कि बोन्स कंटेन्स सॉफ्ट सब्सटेंसेस कॉल्ड बोन मैरो विच प्रोड्यूसेस न्यू ब्लड सेल्स, मतलब बोन मैरो में बोन के अंदर एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको हम बोन मैरो बोलेंगे, वो ब्लड सेल्स को फॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। दीदी once again she is going to read once again, so please listen it carefully. It gives shape and support to the body. Number 2, it also protects important internal organs. The skull protects the brain and the ribcage protects the heart and lungs. Number 3, it helps in the movement of different parts of the body. Number 4, bones contain soft substances called bone marrow which produces new blood cells. So, ये थे हमारे 4 सेशंस का recap. Now in today's session I am going to explain you about joints, उनमें movable joints और immovable joints. तो let's see that. Movement of the different parts of the body cannot be carried out by bones alone. They need help from joints and muscles. कोई भी हमारे बॉडी की मूवमेंट होती है वो हमारे अकेले से होती नहीं है. दे नीड हेल्प फ्रॉम जॉइंट्स एंड मसल्स. उसको जॉइंट्स और मसल्स की हेल्प चाहिए. क्लियर. नाउ सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? जॉइंट्स. जॉइंट्स क्या है वो मैं आज आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी. 2 और मोर बोन्स कनेक्ट एट अ जॉइंट, मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा बोन्स एक पॉइंट पे जॉइंट होते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट्स. बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यूज कॉल्ड द लिगामेंट्स. वो किसके थ्रू जॉइंट्स होते हैं? टिश्यूज के थ्रू. किसके थ्रू जॉइंट्स होते हैं? टिश्यूज के थ्रू. उस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? लिगामेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? लिगामेंट. At the joints, the bones are covered with another tissues called the cartilage. Joints जो होते हैं ना, वहाँ पे bones भी होते हैं, वो दूसरे tissues के साथ भी connected रहते हैं. उस दूसरे टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेज. पहले वाले टिश्यू को हमने क्या बोला था? लिगामेंट. दूसरे वाले टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेज. The cartilage protects the bones from wear and tear that results from the movement at the joints. कार्टिलेज क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारे जो बोन्स जो होते हैं ना किड्स, हमारे घर पे फर्नीचर होते हैं, राइट. फर्नीचर का सपोज आप डोर देख लो. डोर का काम क्या है? खोलना, बंद होना, खुल जाना. तो ये उसकी कंटिन्यूअसली मूवमेंट होती है, राइट.
तो बिल्कुल वैसे ही हमारे बोन्स की कंटिन्यूअसली जॉइंट्स के पास मूवमेंट होती रहती है। जैसे फर्नीचर में कोई भी बहुत यूज़ होता है तो उसमें आवाज़ आती है च्यू च्यू करके, राइट, च्यू ऐसे आवाज़ आती है बहुत टाइम तक, तो हमें उसमें क्या करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है, राइट। तो ये एक कार्टिलेज का क्या काम है कि वो जो बोन्स होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्या करते हैं, ताकि उसमें ज़्यादा डैमेज ना हो। हम इसको तो ऑयलिंग कर सकते हैं कोई भी फर्नीचर को, बट हमारे बोन्स को कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे बोन्स को कार्टिलेज प्रोटेक्ट करके रखते हैं। समझ में आया किड्स, वो एक टिश्यूज़ है जो हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यहाँ से बहुत सारी मूवमेंट हुई होती है तो वो वहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें कभी चू चू मतलब उसको एक लेयर बना के रखता है, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती नहीं है। नाउ ligaments are the tissues which hold the bones at the joint together। ligaments एक टिश्यू है जो joints को पकड़ के रखता है एक पॉइंट पे। ये मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, अच्छे से सुना। once again I am repeating, ligaments are the tissues which hold the bones at the joint together, right? Cartilage are the tissues which cover the bones at the joint। मतलब कार्टिलेज भी एक टिश्यू है जो बोन्स को एक पॉइंट पे, जॉइंट पे पकड़ के रखता है। लिगामेंट्स और कार्टिलेज दोनों टिश्यूज है, मगर लिगामेंट्स जॉइंट्स के बोन्स को कनेक्टेड रखता है और कार्टिलेज उन बोन्स के ऊपर कवर्ड रखता है। क्लियर, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आपको समझ में आया ना किड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, लिगामेंट्स और कार्टिलेज दोनों टिश्यूज है, मगर लिगामेंट्स जॉइंट्स के बोन को कनेक्टेड रखता है और कार्टिलेज उन बोन्स के ऊपर उसको कवर्ड रखता है। क्लियर। नाउ जॉइंट्स कैन बी टू टाइप्स। जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, इमूवेबल जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स। कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स और इमूवेबल जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स में कौन कौन से होते हैं, जो जॉइंट्स फिक्स होते हैं, जो जॉइंट्स फिक्स होते हैं, मूव नहीं करते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स। हम उसको क्या बोलेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स, जो हिलते नहीं है। देखो ये वाला हिल रहा है, मतलब ये कौन सा आएगा, मूवेबल या इमूवेबल, यस ये मूवेबल आएगा। अपर का जो पार्ट है वो कोई भी हिल रहा है, नहीं हिल रहा है, वो फिक्स है, तो वो किस में आएगा, इमूवेबल में आएगा। क्लियर हो रहा है किड्स। नाउ आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल, जो बोन्स, स्कल के बोन्स के आजू बाजू में जो जॉइंट्स होते हैं, एक्सेप्ट द लोअर जो, लोअर जो के सिवा जो कुछ भी होता है ना, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स है, इमूवेबल जॉइंट्स। यहाँ का छोड़ के ऊपर के सारे बोन्स के बीच का स्कल के जो पार्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे इमूवेबल जॉइंट्स है, क्योंकि वो फिक्स है, वो मूवमेंट करते नहीं है। ये लोअर जो तो मूवमेंट करता है, तो वो किस में आएगा, वो मूवेबल में आएगा। ओके। नाउ मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं ना, वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो हिंज जॉइंट एट द नी, हमारी जो नीज होती है ना, घुटन, उसमें जो जॉइंट होता है ना, उसको क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट। क्या बोलेंगे, हिंज जॉइंट। आप अपने लेग को करो, बेंड करो, ओपन करो, बेंड करो, ओपन करो, तो वो कौन सा जॉइंट हुआ, हिंज जॉइंट। मतलब वो मूवेबल है किड्स, वो आप मूवमेंट कर पा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मूवेबल जॉइंट्स, राइट। फिर दूसरा है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट द हिप। हमारे हिप के पास बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, राइट। आप देखो उसमें बैठो, खड़े हो, ऐसी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करो, कर पा रहे हो, उसमें मूवमेंट हो रही है, हिल रहा है ये सब कुछ, तो वो क्या हुआ, मूवेबल जॉइंट्स। क्या हुआ, मूवेबल जॉइंट्स। नाउ नंबर 3, पाइवोट जॉइंट एट द नेक। पाइवोट जॉइंट एट द नेक, यहाँ से मूवमेंट हो रही है, मूवेबल है, ये पार्ट मूवेबल है, सी।
तो इसको मूवेबल आएगा कि इमूवेबल आएगा? नहीं, ये मूवेबल है, तो ये थर्ड पार्ट पाइवोट जॉइंट किस में आएगा? मूवेबल में आएगा। मूवेबल जॉइंट है, क्या है? मूवेबल जॉइंट है। नाउ नंबर 4, ग्लाइडिंग जॉइंट एट द एंकल एंड द wrist। ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं हमारे एंकल और wrist में, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, यस, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ मूवेबल जॉइंट। तो हम इसको किस में बोलेंगे? मूवेबल जॉइंट्स में, राइट। अब सबसे वाला पहला हिंज जॉइंट एट द नी, उसको मैं आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी। हिंज जॉइंट, राइट, इट अलाउज ओनली बैक एंड फ्रंट मूवमेंट। बोन्स ऑफ द नी, एल्बो, फिंगर्स एंड टोज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया ना कि नीज के ऊपर हम लेग को आगे कर सकते हैं, फिर हैंड को पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। नो, वो मूवमेंट होती है बट एक ही डायरेक्शन में होती है, राइट। ये हैंड है, ये ऐसे ही होता है, बट हुआ तो खरा ना, वो मूव तो हो रहा है ना, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ मूवेबल। तो ये किस में आएगा? हिंज जॉइंट में। किस में आएगा? हिंज जॉइंट में। नी वाला है वो भी किस जॉइंट में आएगा? हिंज जॉइंट में आएगी। फिर ये एल्बो वाला मैंने बोला अभी, वो भी हिंज जॉइंट में आएगा। फिर फिंगर्स, फिंगर्स में भी ये है, ये हुआ ना, पीछे की तरह जाती है, फिंगर्स की मूवमेंट होती है, नो, तो ये भी किस जॉइंट्स में आएगा? हिंज जॉइंट्स में आएगा। टोज, टोज मतलब पग, पैर के जो फिंगर्स होते हैं हम उसको क्या बोलेंगे? टोज। वो जो आप मूवमेंट करो एक डायरेक्शन में ही बैंड होंगे, तो वो भी किस जॉइंट में आएगा? वो भी हिंज जॉइंट में आएगा। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स थे? हिंज जॉइंट के। किसके? हिंज जॉइंट के। नाउ नंबर 2, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल and socket joint, it allows movement in many directions. Shoulder joint and hip joint are the examples of ball and socket joint. बॉल और वो उसकी मैनी डायरेक्शन मतलब बहुत सारे डायरेक्शन में हम उसको इजीली मूव कर सकते हैं। उसमें कौन सा? एक तो ये शोल्डर वाला भी आएगा और हिप वाला भी आएगा। वो किसके एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के। किसके? बॉल और सॉकेट। क्यों बॉल और सॉकेट ऐसा नाम है? क्योंकि वहाँ पे बॉल जैसा और सॉकेट जैसा लाइक बॉल होता है और उसमें सॉकेट जैसा हमारे बॉडी में उसके जॉइंट्स में होता है, उस वजह से हम क्या बोलेंगे? बॉल और सॉकेट जॉइंट्स। तो उसमें क्या आएगा? शोल्डर और हिप। क्या आएगा? उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? शोल्डर और हिप के। नाउ नंबर 3, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट्स किसको बोलेंगे? इट अलाउज द हेड टू टर्न लेफ्ट, राइट, अप, down. This joint is found in between the first two vertebrae of the backbone. ये जो हमारे पीछे हमने वर्टिब्रल कॉलम दीदी ने समझाया था, राइट, उसमें एक एक पर्टिकुलर को हमने क्या बोला था? वर्टिब्रे। क्या बोला था? वर्टिब्रे। तो क्या है? This joint is found in between the first two vertebrae of the cone. हमारे जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रे होते हैं ना, उसके बीच में ये वाला जॉइंट होता है, उसके बीच में ये वाला जॉइंट होता है, इसीलिए हमारे पाइवोट जॉइंट की मूवमेंट हो सकती है। उसी वजह से हमारे पाइवोट जॉइंट की मूवमेंट हो सकती है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। क्लियर? तो इसको हम कौन सा जॉइंट बोलेंगे? पाइवोट जॉइंट। नाउ लास्ट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या आएगा? एंकल और रिस्ट में। It allows bones to slide against each other in a gliding motion. These type of joints is found in the bones of the wrist and ankle and between the bones of the vertebrae. जो हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ना, वो एक ग्लाइडिंग मोशन में होता है। ग्लाइडिंग, हम जो ग्लाइडिंग पता है ना, कोई भी हम स्लीपरी जैसा होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। वो कहाँ पे फाउंड होता है? वो कौन सी जगह पे होता है? तो एक तो वो व्रिस्ट में होता है, वो पैर के बीच में जो एंकल आता है वहाँ पे होता है, और एंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे। वर्टिब्रे जो होते हैं ना, उसके बीच में भी छोटे छोटे बोन्स होते हैं, वहाँ पे भी ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है।
सो किड्स, आई होप सो आपको ये चार के डिफरेंस पता चले। मूवेबल जॉइंट्स कौन से, इमूवेबल जॉइंट्स में क्या क्या आता है, तो कि द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल, कि स्कल के बीच में जो बोन्स आते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स, एक्सेप्ट द लोअर जो, लोअर जो को छोड़ के सारे बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स आते हैं हम उसको क्या बोलेंगे, इमूवेबल जॉइंट्स। बाकी मूवेबल जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। नंबर 1 हिंज जॉइंट, नंबर 2 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नंबर 3 पाइवोट जॉइंट, नंबर 4 ग्लाइडिंग जॉइंट। चलो फटाफट से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। हिंज जॉइंट जो होते हैं वो हमारे नी एल्बोज के बीच में होते हैं, राइट। फिर बॉल और सॉकेट कहाँ पे होते हैं, शोल्डर और हिप में। फिर पाइवोट जॉइंट कहाँ पे होते हैं, हमारे नेक में, राइट लेफ्ट अप डाउन। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होते हैं, हमारे व्रिस्ट में, हमारे एंकल में, हमारे फिंगर्स में, हमारे वर्टिब्रे में। किड्स, आई होप सो ये आपको डिफरेंसेस क्लियर हो रहे हैं। तो इस सेशन में हमने क्या पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ा। जॉइंट्स में कौन कौन से थे, 2 टाइप्स, मूवेबल जॉइंट्स एंड इमूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स में क्या था, स्कल के बीच में जो सारे के सारे बोन्स आते हैं तो वो कौन से जॉइंट्स है, इमूवेबल जॉइंट्स, क्योंकि वो मूव करते नहीं है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ इमूवेबल जॉइंट्स। बाकी मूवेबल जॉइंट्स कितने होते हैं, 4, राइट। वो हमने इजीली पढ़े, वापस से रीड करें दीदी। चलो एक बार फटाफट से एक बार रिकैप दे देती हूँ। हिंज जॉइंट, इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। Bones of the knee, elbow, fingers and toes are the examples of hinge joint. Ball and socket joint, it allows movement in the many directions. Shoulder joint and hip joint are the examples of ball and socket joint. Now pivot joint, it allows the head to turn left, right, up, down. This joint is found in between the first 2 vertebrae of the backbone. backbone के पीछे जो 2 vertebrae होते हैं उसके बीच में ये bones पाए जाते हैं, ये joints पाए जाते हैं। Now last one, gliding joint. It allows bones to slide against each other in a gliding motion. This type of joint is found in the bones of the wrist and ankle and between the bones of the vertebrae. So kids, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, राइट। इसी के साथ एक PDF है क्वेश्चंस की, वो आपको आंसर देना है। आई होप सो ये सेशन अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप आंसर्स भी दोगे, ओके। सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय।